You are third topper, beta, right? And the second topper is in which class, beta? मेघा सर वो मेघा है, वो बी में है। B में, okay. 11th B. She has taken physical education or engineering graphics, right? सर उसके पास PCM भी है। PCM B. Yes, B sir. section is for bio. Okay. Yes, sir. Okay. So set is what? A well-defined collection. If they are asking the definition, well-defined collection of objects. And this object can be numbers, element, और कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है? Object sets. And now Aryan Sinha. Aryan? Yes, sir. Yes, beta. The sets can be represented in how many ways, beta? Sir, in two ways. In a roster form, in set builder form. Roster form and set builder form. Right? Yes, sir. Is roster form? What is roster form, Aryan? Sir, roster form. Roster form is a roster form. Sir, we write the elements of a set in curly brackets, sir. Okay, very good. Excellent. And what is set builder, beta? Sir, set builder form, sir, in a set we write the given condition now. Given? Condition now. No, but what is set builder, beta? Like you have told that we need to write elements in curly bracket. So what is set builder? If I'll say, ask, what is set builder form? In this, we write set in statement form. Yes, sir. Statement form. So like I'm taking an example 2, 4, 6, 8. Right. So what is the set builder form of this, beta? अरे बोलो बेटा एक बार ट्राई करो, कोई बात नहीं. What? Sir, we would write that x. Yes. Carry on. X is such that x is a even number. Yes, even number. Less than 10. इसको कोई बच्चा ऐसे प्रॉपर करेगा बेटा? दिस इज नॉट द natural number. Yes. It says that x is equal to 2 and where n is 1 is smaller than equal to n and n is smaller than equal to 4. N belongs to natural number and n is less than equal to 4 or greater than equal to 1, right? Yes. This is also correct, beta. And here we need to write natural number, beta. Natural even numbers. ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दो, लेस देन 10, क्योंकि वेल डिफाइंड है बेटा. ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन डन. देन व्हाट इज नेक्स्ट? एम्प्टी सेट. व्हाट इज एम्प्टी सेट बेटा? एम्प्टी सेट of no element. Okay. Is there Arumita? Yes, beta. Arumita. Empty set is represented by 5. Only one symbol is we have, beta, or any other? Sir, we can write curly bracket and in that we don't have to write any element. Yes, very good. These two are the representation of a empty set, right? And what is the other name? Lenoy. Empty set का दूसरा नाम क्या है? Lenoy, are you there, beta? Lenoy is present or absent? Yes, sir. Lenoy जी, yes, please बताओ बेटा. What is the next name of empty set? मैं सिर्फ 1 मार्क कर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं बेटा. यहाँ पे they may give you 4 options.
right? But I'm asking your correct answer. What is the another name of empty set? Option will be zero set. Yes, beta? null set. Null set. चलिए एक और नाम है इसका, एक और नाम है बेटा, Sir, void set. right? So this way you have to know each and everything. These are all one marker question. Okay, next is natural number, set of natural number denoted by which letter beta? Capital N. Capital N. And set of irrational number denoted by Sir, T. Capital T. capital D. Set of complex number denoted by Capital C. capital C. Very good. And Z is the set of Set of integers. integers. Then I is the set of I is the set of Integers. yes. ये दोनों integers के लिए use करते हैं बेटा NCERT. I is also for integer, Z is also for integer. But this is the main thing beta. Right? Z is important. But they use I also NCERT. Right? So Sir, what if is I C write क्या बेटा C for complex number बेटा, set of complex number. T for irrational number. What is the symbol for rational number beta? Q. Q? Q. Right? And what is the meaning of Z plus? Z super. Positive. Positive Positive integers. integers. Right. Now, जिससे पूछूंगा वो बताएगा बेटा, ठीक है? सिद्धार्थ जैन. सिद्धार्थ जैन. Are you there beta? Yes, sir. Yes beta. Subset. What is the meaning of subset beta? Sir, a set. नॉर्मल लैंग्वेज में Subset. समझा दो, कोई बात नहीं. नॉर्मल लैंग्वेज में बता दो. सर जब कोई भी सेट सर एक दूसरे सेट के अंदर भी मतलब जैसे एक दो सेट्स हैं अगर ए और बी, और अगर ए सेट के एलिमेंट्स बी सेट के अंदर है तो हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे. अच्छा, सपोज A set is 1, 2, 3, right? And B set is 3, 4, 5. So it means A is a subset of B, right? सर एक सारे एलिमेंट्स होने चाहिए बी में. हाँ, तो अब आपने करेक्ट किया ना. All the element of A should also contain in B, right beta? So this is the definition. Yes. If every element of set A is also an element of set B, is known as subset, right? A is subset of B. Now, one more thing बेटा, यहाँ पे एक और चीज था, अब कौन बताएगा? सिद्धांत का तो माइक ठीक नहीं है. श्रेया जी है बेटा? श्रेया, श्रेया is there or not? Okay, Vani is there. Vani. Vani, not. Vanshika. Yes, sir. Vanshika, right? Vanshika, what is the Yes, mathematical definition of A is a subset of B? Mathematical. This is my 1 mark question, beta. Mathematical definition. Mathematical definition of subset. Sir, Anyone? हाँ, बोलो बोलो वंशिका. C belongs to A and A is a subset of B, so C will also belong to B. So, what should I write? Dictate me. What should I write? So C See, I'm belongs writing. to A. See, I'm writing. Sir, am I Yeah. audible? Yes, yes, yes. Who is this? Sir, Vani. वानी. आप तो अभी गायब हो गए थे बेटा.
Sir said for the network issue. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं. देखो, आई एम आस्किंग mathematical definition of subset. So I'm writing this. If X belongs to A, implies X belongs to B, then A is a subset of B. This is mathematical definition. Remember this thing, beta. मेरा क्वेश्चन होगा mathematical definition of a subset. A is a subset of B. ये मैंने क्वेश्चन बोला. 4 ऑप्शन होंगे. X belongs to A implies X belongs to C. C का कोई रोल नहीं है, हट गया ये ऑप्शन. X belongs to A, Y belongs to B. X belongs to A implies Y belongs to B. This is also not related. तो इन्हीं को ही मैं जंबल करके आपको दे दूंगा. इनमें से एक ऑप्शन आपको मैच करना है. बट अगर आपको बेसिकली पता होगा तभी आप उस पर टिक कर. ठीक है, सो ये ध्यान रखना बेटा. नाउ चलो वानी आप बताना बेटा. नाउ योर माइक इज वर्किंग. वानी रिप्लाई बेटा. Yes, sir. Yes. If A is having 1, 2, 3, 4, right? So what are the number of subsets? Number of Sir, 2 subsets. to the power 2 to the power 4. 4. That means 16. Right? Now, one more thing, beta. One more thing. What is proper subset? Lakshay. Lakshay. Yes, sir. Yes, beta. Proper subset is what? What is the meaning of proper subset? Sir, if बोलो बेटा, ट्राई करो. ऐसा नहीं कुछ की गई रिवीजन है, मैं करेक्ट कर रहा हूं आपको अगर कोई गलती होती है तो. if A is a subset of B, but A is not equals to B. A is a subset of B, but A is not equal to B. Correct. This is the definition, beta. Proper subset. Right? जैसे ये बोल रहे हैं कि A is a subset, equal नहीं होना चाहिए. Suppose A set is equal to 1, 2 and B set is equal to 1, 2, 3. So in this case, beta, in this case, can we say that A is a subset of B, proper subset of B or not? Yes, Yes, sir. sir. Right? Because यहाँ पे बोला is not equal to B. अगर मैं ये 3 नहीं लेता, then it is not proper subset beta. Right? अगर मैं ये 3 नहीं लेता B में, then it is not proper subset. It is a subset of B and equal to B. Right? Now in this situation, if it is a proper subset, what is A known as and what is B known as? A is a If, subset and B is a superset. yes, A is a subset, this is a subset and B is known as superset of A. B is known as the superset of A. Right? Then next is beta, if A has 1, 2, 3, 4. What are the number of proper subsets? Number of proper subsets. Anyone better? 2 to the power n minus 1. 2 to the power n minus 1 or total minus 1? Total minus The 1. total minus 1. Total minus 1. So in this case, the number of proper subset is equal to 15. Right? So my question is, if A has 4 elements, then what are the number of proper subset? Options are 13, 14, 15, 16. Right? So you are able to get the correct answer. Clear beta? चलिए next Shashwat. Shashwat is in class beta. Yes, sir. Yes, Shashwat. What is power set beta?
power set. So And how power it set is is the set of all the subsets of a set. collection of all the subset बेटा, ठीक है? Collection. Yes, sir. देखो कुछ जब definition की बात होती है ना, तो you have to use the correct word बेटा. Collection of Okay, sir. all subsets of a set A. Given set भी बोल सकते हैं, of a given set, right? And is denoted by Shashwat. If set is A, how we denote power set बेटा? Sir, I don't remember. Okay, this is P for power of means bracket A, power set, right? This is P Yes, of sir. A. This is the power set, and this is the collection of all the subsets of set A, right, beta? Now next thing, recall करो, कोई problem नहीं beta. Take your time also. Now, what are the number of elements? If A has n elements, then what are the number of element of power set? Number Two raised of to n. elements in power set A. क्या बोला बेटा, किसी ने बोला? 2n. 2 raised to the power n. 2 raised to the power n. ठीक है ना? क्योंकि मैंने भी आपसे पूछा सब नंबर ऑफ सबसेट, तो आपने 2 raised to the power n बताया था अभी, ठीक है? अब मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट. तो पावर सेट इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट. तो जब ए सेट में n एलिमेंट होंगे तो उसके सबसेट 2 raised to the power n बनेंगे. तो इट मीन दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, राइट? ओके, द नेक्स्ट इज, चलिए, इफ सेट ए इज दिस, इसके सबसेट्स बताओ बेटा क्या क्या होंगे? और वी कैन राइट दिस इज, बोलो भाई, कौन बोलेगा? Sir, only 5. Sir, only 5. 5. तो ये तो 1 आ गया बेटा, पर इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है. Sir, 2 to power 0 1 होता है ना. 2 to the power 0 1 होता है, राइट? चलिए, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए, सेम क्वेश्चन बेटा. Sir, 1. 1, right? Now again, number of elements in power set of power set A. अब बोलो भाई. 1. 2 आएगा सर. देखो, एक जो 1 बोल रहा है पहले वो बताओ 1 क्यों है, 2. और जो 2 बोल रहा है वो होगा 2 सर. बताओ. सर 2 to power n पावर सेट होता है ऑफ ना. ए में सर एक एलिमेंट आ जाएगा 5. अब ये आपका एक सेट हो गया, तो उसमें एक एलिमेंट, ठीक है? चलो, अब इसके आपने करेक्ट बोला बेटा 2. नाउ एलिमेंट मुझे बताओ क्या क्या होंगे इसके. सर एक 5 और एक कर्ली ब्रैकेट 5. वेरी गुड. हु हैज गिवन दिस आंसर? नाम बताना बेटा. भव्या मिश्रा. भव्य मिश्रा, वेरी गुड बेटा. दिस, राइट? चलो एक और बढ़ा देता हूं इसमें. नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए. अब बोलो. सर 4. 4, ठीक है? और पता चली गया क्या बनेगा वो आपका? चलिए, कौन बताएगा? ऐश्वर्या. ऐश्वर्या इज इन क्लास. ऐश्वर्या, ऐश्वर्या प्लीज बताओ बेटा. ट्राई करो, डोंट हेजिटेट बेटा. कर्ली ब्रैकेट, चलिए, वी हैव अ डेटा 5. अरुमिता, आप ट्राई करोगे बेटा? अंशिका, सर मैं बताऊं. कौन है भाई ये बताओ पहले. रोहन. रोहन जी, रोहन बेटा बताओ बेटा. वेरी गुड.
एक नॉर्मल 5 और 3 ब्रैकेट वाले। एक नॉर्मल 5 और 3 ब्रैकेट वाले। मतलब एक एक करके। हाँ बोलो, फिर आप बोलो। दिस इज 5, देन दिस, नेक्स्ट बोलो उसके बाद। फिर एक और ब्रैकेट में एक और 5, और 5 नॉर्मल या करली ब्रैकेट 5? लो, और कौन सा रह गया? डबल कर्ली ब्रैकेट। सर हाँ, Double एक डबल ब्रैकेट हो गया है। डबल Double करली curly ब्रैकेट, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। देखो 5 वाली इससे रिलेटेड है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है बेटा। आपको जहां से जो क्वेश्चन मिले 5 के ऊपर सेट्स में, दिस कम्स इन हॉट्स बेटा, ध्यान रखना। आपके जेई में भी आप देख लो, अगर आप 10 साल का पेपर उठा के देखो, सेट्स में कुछ ना कुछ आपको 5 से रिलेटेड पूछते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन 5 से रिलेटेड होते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक बार इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं बेटा, एक बार ट्राई करना, ठीक है ना? सर ये क्वेश्चन दोबारा बताते, डबल कर्ली ब्रैकेट। मैं बताता हूँ बेटा, रुको एक सेकंड, दोबारा लेता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो मेरे पास था ये, अब था मेरे पास ये वाला, तो नाउ आई हैव दिस 5 and curly bracket 5. This is right beta. Now I have to write the subset. So what is the subset? First subset is what? Now these are element beta. Curly These are bracket elements. 5. Suppose this is A and this is B. Suppose this curly bracket 5 is B and non-curly bracket 5 is A. So first you make it like इसके, एक तो 5 हो गया नॉर्मल जो इनसे अलग है, फिर आपका आएगा curly bracket A, then curly bracket B, then curly bracket AB. These are the subsets बेटा। अब A को रिप्लेस करो उनकी वैल्यू से, तो this is 5 as it is, this is 5, this is B, so double curly bracket, then A value is 5 and B value is curly bracket 5. Now, and I am asking power set to make one curly bracket. Right बेटा, बोलो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उस एलिमेंट को नाम दे दो, दैट इज द बेस्ट वे, एंड फिर रिप्लेस कर दो, कोई गलती होगी ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल तो आपको बनाना आता ही है। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। Yes, sir. Right. Then हाँ जी बेटा बोलो। So why phi is a subset of every set? Phi is a subset of every set. Good question. कोई देगा बेटा इसका आंसर? Can you please repeat the question? Question is why phi is a subset of every set. So because 5 means it has no element, so we can always say that every element has no elements. Not justified beta. Someone else beta. देखो basically when the concept arise beta, right? So there is nothing related with the nature कि भाई क्यों है ऐसा, क्यों नहीं है। Phi is the empty set, मतलब phi is the subset of every एक चीज होती है बेटा, देखो नॉर्मली रूम के अंदर, एक अपने रूम में देखना बेटा इस समय, ठीक है? रूम के अंदर देखना, आपके पास बेड है, चेयर है, डेस्क है, लाइट है, फैन है, दीज आर द एलिमेंट which is visible, so basically when we are writing this thing beta, this is a room, this curly bracket, right? And phi, these are the elements, so these are the visible elements, bed, chair, table, fan, and your bulb, LED bulb, AC, cooler, these are visible. What is the element which is not visible at that time in the room beta? Bolo beta, oxygen. Air, yes, correct, right? So this phi is basically an oxygen of every set beta. ठीक है बेटा, देखो हमें
आपने वो क्वेश्चन पूछा जो सालों पहले हमें हमारे टीचर ने एक्सप्लेन किया था, दिस वे ओनली। मैंने आपको वही एग्जांपल दिया है। उस समय एसी वेसी नहीं होते थे, ठीक है ना, तो उन्होंने उस समय की चीजें यूज की थी, मैंने वैसी ऐसी चीजें यूज कर दी हैं। बोल लो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? सबसेट का मतलब Yes, होता sir. है जो भी चीजें विजिबल हैं वहां पे वो तो है ही है, एक और एक ही ले रहा है बस वो जो इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है ऑक्सीजन। तो मैंने ये इसको इन्होंने इसका नाम ऑक्सीजन दिया है बेटा, ठीक है? इस तरीके से समझ सकते हो। अदरवाइज देर इज नो जस्टिफिकेशन मैथमेटिकली कि भाई 5 ही क्यों लेके चल रहे हैं। ये तो जब हमने बनाया बेटा, उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला मेक किया, द नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 raised to the power n। दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉजिक। जब आपके पास एक एलिमेंट होता है तो आप 2 की पावर 1 के बराबर आता है डेटा, जब 2 होता है तो 2 की पावर 2 4 एलिमेंट आपके सबसेट्स आते हैं। तो ये लॉजिकल चला था बेटा, तो ये डिराइव हमने बाद में किया है, ठीक है ना, ये किया बेटा हमने। और जब प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो प्रॉपर का मतलब है जो विजिबल है उसकी बात करो बेटा। प्रॉपर का मतलब ये है जब नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहे हैं जो विजिबल है, ठीक है बेटा? सर फिर तो 2n माइनस 2 होना चाहिए था। 2n माइनस 2 raised to the नहीं तो power हमने n इसको minus हटाया ना 2. बस। क्यों? हमने तो इसी को तो हटाया, बस इस 5 को तो हटाते हैं हम नंबर ऑफ सर प्रॉपर उस सबसेट में। सर उस सेट को भी तो हटाते हैं जिसके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं हमारे गिवन सेट के। ओ, मैंने गलत बोला है फिर बेटा, इक्वल वाले सेट को, क्योंकि डेफिनेशन भी तो वही बोलती है। सॉरी 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 सॉरी, मेरी स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा। यहाँ पे आपको सिर्फ इक्वल वाला हटाना है, यानी कि ये वाला पार्ट हटाना है बेटा, है ना? मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पूछ लिया, आप देखो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। तो मेरे five दिमाग ही तो में है क्या बेटा? no, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। sir, no problem. ओके, देखो बेटा, मैंने ना एक्चुअली मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था, मैंने वो स्टेटमेंट डाल दी। इफ अ सेट हैज 4 एलिमेंट्स बेटा, राइट, if a set A has 4 elements, then number of proper subsets other than 5 is equal to, बताओ भाई। 2 raised to the power minus 1. क्या बेटा? Sir, 14. 14. 2 raised to the power 16 minus 2। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ क्वेश्चन। 2 raised to the power 4 minus 2. सॉरी, हाँ 4। So it is 16 minus 2, then it is 14। So मैंने ये स्टेटमेंट ऐड कर दी इसके अंदर, एक ये लाइन अदर देन 5, ठीक है। बेसिकली वही होता है जो अभी आपने बोला था, इक्वल वाला हटा देते हैं हम उसमें से, और उसके बाद वो प्रॉपर होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज वेन डायग्राम बेटा? वेन डायग्राम इज व्हाट? व्हाट इज वेन डायग्राम बेटा? Sir, Venn diagram is a way of representing set, sir. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा, करेक्ट करना, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन गिवन सेट्स, ठीक है। दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और diagrammatic representation of the data in a given set ओके। अब देखो बेटा, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन तो ठीक है, चलो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पावर सेट। अब इसमें केस स्टडी क्वेश्चन है, तो अगर सेट्स में केस स्टडी की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो बेटा, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, देखो मिसलेनियस 27 पेज मिसलेनियस। हैव यू सीन बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट? Yes, sir. राइट। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन आस्क इन केस स्टडी प्रॉब्लम बेटा। दिस इज लाइक केस स्टडी प्रॉब्लम।
they have given the case in a survey of 60 people. It was found that 25 people read newspaper Hindi, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspaper. Then fine. अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? On the basis of this information, जो भी अभी हमने आपको ये क्वेश्चन रीड किया है, this is the information I have given you, right? On the basis of the given information, please give the answers. Answer the following. ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन में दे दूंगा. जैसे इसमें 2 क्वेश्चन तो उन्होंने पूछे हुए हैं. The number of people who read at least one of the newspaper. Second is the number of people who read exactly one newspaper. ठीक है ना? इस टाइप के कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूलाज मतलब क्वेश्चंस में आपको फ्रेम करूंगा तो वो आपके केस स्टडी क्वेश्चन बन जाते हैं. अगर इस टॉपिक पे से कोई केस स्टडी आता है तो वो इस टाइप का आ सकता है या फिर इस टाइप से आ सकता है बेटा. सपोज जैसे मैंने अभी ये पूछा आपसे, इफ ए हैज 5 एलिमेंट्स, राइट? तो सबसे पहले तो ये लिखा नंबर 1. फर्स्ट पार्ट मैंने आपसे पूछा 5 एलिमेंट्स में नाम भी लिख दूंगा बेटा, ए बी सी डी ई, इस तरीके से मैंने दे दिया आपको. नाउ फर्स्ट इज नंबर ऑफ सबसेट्स. मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ सबसेट्स, पहला पार्ट. व्हाट इज द आंसर बेटा? 2 raised to the power 5, राइट? नेक्स्ट पार्ट मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. प्रॉपर सबसेट्स 31. Yes, 32, 31, right? Then number 3, number of proper subsets other than 5. अब कितना हो गया बेटा? 30, right? फिर नेक्स्ट पूछ लिया मैंने फोर्थ बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए. What is this beta? 32. Number of 32. right? So 532. हाँ बेटा. और ऐसी कोई एक और बोल दूंगा, एक और क्वेश्चन बना दूंगा. अब मैंने अगर बोल दिया देखो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अदर देन फाई एंड ए, अगर अब मैं बोल दूं नंबर ऑफ सबसेट्स अदर देन फाई एंड करली ब्रैकेट ए, इस तरीके से लिखना पड़ेगा. ठीक है? अदर देन फाई एंड करली ब्रैकेट ए. तब आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 29. ठीक है? और उसमें अब आपके पास होगा क्या बेटा? ऑप्शन देंगे 30, 31, 32, 33, 34, ऐसी ऑप्शन उसमें करेक्ट करना है बता. तो दीज आर केस स्टडी प्रॉब्लम्स बेटा. केस स्टडी करा क्या बेटा? किसी एक कॉन्सेप्ट को आपको दे दिया लिख के, कोई एक डेटा दे दिया, अब उससे रिलेटेड जो जो चीजें मैं पूछ सकता हूँ दैट इज नोन एज केस स्टडी. और बी केयरफुल बेटा, उसमें नंबर कटते हैं. वो क्वेश्चन 5 होंगे बेटा, 5 पार्ट्स होंगे आपके, लेकिन यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ एनी 4. तो मोर देन 95. क्या बेटा? तो केस स्टडीज 10th में भी थी. हाँ अच्छा, हाँ आपने तो 10th में ही पढ़ी है केस स्टडी. मुझे लग रहा है पहली बार आप केस स्टडी कर रहे हो तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा था. ठीक बेटा. तो केस स्टडीज तो फिर इसका मतलब आपको क्लियर तो आएगी केस स्टडी करते क्या उसमें. ठीक है? तो क्वेश्चन एक किसी क्वेश्चन डेटा से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन दे आर आस्किंग, इट मीन दैट इज केस स्टडी क्वेश्चन, राइट? मैं जो आपको इंपॉर्टेंस बता रहा था बेटा, जो मोर देन 95% बच्चे करते हैं, और उसमें सीबीएसई की इंस्ट्रक्शन है बेटा, इफ स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग 5 पार्ट, ऑल 5, then you have to deduct 1 mark बेटा, whether it is all correct or not. आपको एक नंबर काटना है. If you are confident about first 4, then write the answer of first 4. If you are confident about the first 3, then write answer 3. और 4th का ट्राई कर रहे हो आप. लेकिन अगर आपने 5th का भी आंसर लिख दिया और सपोज करो आपके 5 आंसर करेक्ट हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग 4 मार्क बिकॉज ये क्वेश्चन 4 मार्क का है, you will get only 3 marks. ध्यान रखना चीज का. This is the instruction from CBSE. क्या बेटा बोलो? सर ऐसा क्यों? बेटा इसका मतलब है you are not following the guidelines. We are
क्लियरली मेंशनिंग। और दूसरा मतलब है इसका कि आप खुद डाउटफुल, आपको क्वेश्चन आता नहीं, आप ट्राई कर रहे हो कि मेरे कम से कम 4 तो ठीक ही हो जाएंगे। मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं, हम लोग उन बच्चों का जरूर काटते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनके फुल आउट ऑफ फुल आ रहे होते हैं, मतलब 40 आउट ऑफ 40, 25 आउट ऑफ 25, ठीक है ना। जिनके फुल मार्क्स आ रहे होते हैं उनके तो 100% काटते हैं, क्योंकि इसका मतलब हमें एक कमी दिख गई उस बच्चे के अंदर कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने, या दूसरी कमी क्या दिखी, वो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता इसका मतलब। ठीक है बेटा। सो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये थोड़ा फोकस, क्योंकि ना हम एज ए टीचर आप देखना फिजिक्स केमिस्ट्री सब बोलेंगे आपको, इफ दे आर आस्किंग 4 पार्ट यू हैव टू सॉल्व 4 बेटा, डोंट सॉल्व 5th वन बेटा। कुछ टीचर थोड़ा यहाँ पे लीनियर हो जाते हैं, वो पहले 4 देखते हैं, अगर पहले 4 में चारों ठीक है तो दे दिया, ठीक है 4 नंबर दे दिए, वो 5th को देख ही नहीं रहे, और वो फर्स्ट 4 में से अगर 3 करेक्ट है तब उन्होंने 3 नंबर दे दिए, 5th को देख ही नहीं रहे। तो हर तरीके से हम सीबीएसई की गाइडलाइंस को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। और कोई टॉपिक आपको पूछना हो सेट्स में से बताओ बेटा। सेट्स में आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आपने ट्राई किया हो, वो आप पूछो बेटा, कोई भी डाउट आ रहा है आपका। Sir, हाँ जी बेटा बोलो। if A belongs to natural number, then A complement will belong to. A belongs to natural number, right? Yes, sir. So then A complement will belongs to natural numbers only or integers? One second beta. What A is actually the set of natural number. You are saying this thing, right? Yes, sir. Right. So what is the complement of A? Right? This is your question. So yes, sir. Or A complement means universal minus natural. Right बेटा? बोलो भाई, यूनिवर्सल माइनस ए बोल देते हैं, चलो। एंड ए इज अ सेट ऑफ नंबर्स का यूनिवर्सल सेट क्या है बेटा, ये बताओ। रियल नंबर, वेरी गुड। रियल नंबर में से नेचुरल नंबर माइनस करेंगे तो आप ही बताओ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नहीं इंक्लूड करते हम? किसको बेटा? बेटा कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स में आपने नहीं लेना है बेटा, बिकॉज दिस इज एन इमेजिनरी थिंग। ये हमने कैसे अगेंस्ट द नेचर जाके वो काम किया, वो वाली चीज है बेटा। ठीक है, एक तरीके से जो अगेंस्ट द नेचर जाके हमने काम किया है वो है, लेकिन हाँ हमने बताया कि ऐसा भी हो सकता है और पूरा अलजेब्रा डिराइव हो रहा है बेटा। ये मैथमेटिकल इज व्हाट, बेसिकली लॉजिकल बेस है। लॉजिक, आपने एक लॉजिक डेवलप कर दिया, सिर्फ एक रूट ऑफ -1 को एक नेम देने से, आयोटा नाम देने से, एक प्रॉपर एक मैथमेटिक्स की एक और ब्रांच डेवलप हो गई। आपको पता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप बहुत हायर स्टडीज तक पढ़ते हो, आपका सर्कल भी बनेगा कॉम्प्लेक्स में। नॉर्मल में पढ़ा होगा आपने x² + y² = a², दिस इज सर्कल। स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा आपने ax + by + c = 0। अब आप इसके हायर क्लासेस में आफ्टर 11 12th में इसका ज्यादा यूज नहीं है। लाइक इफ यू डू मैथमेटिक्स ऑनर्स तो मैथ्स में ही मैथ्स की चीजें ज्यादा मिलेंगी, और यू मे फाइंड इन बीटेक आल्सो। आई डोंट रिमेंबर दैट this topic in BTech or not, but in BSc and MSc we have better complex analysis करके एक टॉपिक है, तो हम लोग करते हैं हायर क्लासेस में, और उसमें आप इतना पढ़ोगे कि आपको लगेगा कि यार ये तो एक पैरेलल अलजेब्रा चल रहा है, नॉर्मल अलजेब्रा की तरह। हर चीज पॉसिबल है उसमें। सिर्फ एक आयोटा का नाम √-1 देने से आपका हर चीज पॉसिबल होगी। सिर्फ इसका नाम हमने ये दिया और सारी चीजें डेवलप होगी। और छोटे छोटे पॉइंट और आएंगे आगे और हायर क्लासेस में। मतलब जैसे एक मेजर पॉइंट ये हो गया, तो 11 12 डिपेंड ऑन दिस ओनली। 11 12 जो है आपका वो इस पे डिपेंड करता है। फिर आप हायर क्लास BSc BTech वगैरह में जाओगे, अगर वहां पे है तो कुछ 1-2 पॉइंट और देंगे आपको, उसके बाद फिर सारा उसी पे चलेगा।
इस तरीके से तो मतलब कोई एक और पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करते हैं। बस ऐसे कह लो आप। जैसे अब कह रहे हैं ना कि वहां पे वो मून पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, अब लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, वहां पे कोई रेस्टोरेंट बना रहा है, तो अभी सब इमेजिनेशन में चल रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? वो सब जाके देख के आए ऑक्सीजन है, फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जाते हैं वहां पे, ठीक है। जमीन देख के आए हैं, पानी देख रहे हैं कि पानी की एक बूंद दिख गई है, तो कह रहे वहां पे पानी भी है, नहीं तो सप्लाई करेंगे। तो यानी जैसे दुबई एक बताया है जहाँ पे कुछ भी नहीं था अपना, तो सब आर्टिफिशियल लगा लगा के एक कंट्री बना दी दुबई। ऐसे करके ये इन्होंने एक मून में ही बना देना है कुछ। सेम एक पैरेलल अलजेब्रा है बेटा, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका बताओ बेटा, अगर रियल नंबर में से मैंने नेचुरल नंबर हटा दिए तो क्या बनेगा बेटा? अगर मुझसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द इफ ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए? इंटीजर। बेटा अगर यहाँ पे मेरे पास 1.001 है और 1.002 है, ठीक है, और मैंने 1 भी है, तो नेचुरल नंबर हटाने के लिए क्या रहा ना, रेस्ट तो है ही बेटा। कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट दे, बताओ बेटा। सर इंटीजर्स एंड जीरो। इंटीजर्स एंड जीरो? बेटा ये नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर्स एंड जीरो। नहीं ये इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, डेसिमल और नहीं 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 नहीं, तो ये तो आप बहुत सारी चीजें बोल रहे हो। आप एक ऐसी कोई चीजें बहुत बोलो ना सारी हैंगी। बेटा, बस यही इसका आंसर यही होगा बेटा। और लैंग्वेज में अगर मैं बोलूंगा तो इसका आंसर होगा बेटा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। इफ समवन इज आस्किंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, देन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नेचुरल नंबर। जो डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट की, मुझे वही आंसर बोलना है बेटा, ये है मेरी तरफ से आंसर, ठीक है। बिकॉज आप उसको एक लैंग्वेज में नहीं, आप इंटीजर भी बोलोगे, डेसिमल भी बोलोगे, रैशनल नंबर भी बोलोगे, रैशनल नंबर भी बोलोगे, रियल नंबर के अंदर सारे आ जाते हैं बेटा। उसमें से सिर्फ आपने नेचुरल नंबर हटाए जो एक स्पेसिफिक है 1 से लेके, बाकी तो सारे आ रहे हैं। यस सर। ठीक है ना, तो वी हैव टू राइट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नेचुरल नंबर। दिस इज माय आंसर बेटा। और आपका क्वेश्चन अच्छा है बेटा, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी वर्कशॉप में डिस्कस हुआ था, ये हमारी कोई सीबीएसई की वर्कशॉप, ये टॉपिक पे ये डिस्कस हुआ था बेटा, ठीक है। चलो अच्छा बेटा, मैंने ना जो एक्टिविटीज दी थी उनको ये प्लान करके दिया था कि वो वेडनेसडे को करेंगे, लेकिन अब उनको मैं चलो फ्राइडे तक का टाइम दे रहा हूँ। फ्राइडे की क्लास में दे हैव टू प्रेजेंट, राइट, प्रेजेंट करना है। स्पेशली जो आपका क्विज है ऑन, क्या कहते हैं उसको, मैंने सेट्स पे बोला था, तो बिफोर कंपाइलिंग दैट क्विज यू हैव टू गिव मी, शो मी दी क्वेश्चंस बेटा, ठीक है। ऋषभ है और गौतम कक्कर है, पहली चीज बेटा, ठीक है। एंड द सेकंड वन जो दूसरा था फ्लिप टीचिंग वाला बेटा, फ्लिप टीचिंग वाला कौन बच्चे थे? आकांक्षा एंड वानी, बोथ आर प्रेजेंट टुडे? यस सर। आकांक्षा, so you will be ready by Friday beta, right? Yes sir. So both the team you have to ready on Friday, ठीक है। ध्यान रखना अपनी चीज के साथ। अब अगर उस दिन मिस किया तो आपका इस आपकी एक्टिविटीज में आप चारों बच्चों के 0 लगेंगे, फिर ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको स्पेसिफिक टाइम दूंगा, कितने टाइम में करना है तो वो करना है बेटा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। 1 second, डोंट लीव द क्लास। Okay, now you can leave beta. Thank you. Welcome beta. Thank you, sir. Welcome beta, welcome.